Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Tulsi Global Academy. As you know that in this channel we have started the class 12th IP subject, and in this IP subject we have started the unit number first, what is pandas. And pandas के इस वीडियो सीरीज में हम लोगों ने सीरीज के बारे में डिस्कस किया है, डेटा फ्रेम के बारे में डिस्कस किया, and now today we are going to discuss about the operation on the rows and column in a data frame. कि जो भी सपोज करिए अगर आपके पास 2 डायमेंशन डेटा फ्रेम है, तो उस 2 डायमेंशन डेटा फ्रेम में हम लोग को सपोज करो कि अगर कोई भी ऑपरेशन करना रिलेटेड टू द रो एंड कॉलम, देन हाउ वी कैन डू दिस एंड विच टाइप ऑफ ऑपरेशन वी कैन डू विथ डेटा फ्रेम. तो यहाँ पे लोग डिस्कस कर लेते हैं पहले कि वी कैन परफॉर्म द सम बेसिक ऑपरेशन रो एंड कॉलम ऑफ अ डेटा फ्रेम. तो क्या क्या हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं? लुक एट हियर, adding the new column. Suppose that if you want to add the new column in a data frame, then how we can add? Adding the new row, if you want to add the new row, then how we can add the new row in a data frame? Deleting the row and column. Suppose करो अगर कोई भी column या row आपको delete करना है from the data frame, then how we can delete it? Rename करना है अगर किसी row label को या column label को, then how we can rename the row label and column label of a data frame. So today we are going to discuss about these operations that we are going to apply on the data frame, how we can do this. And this topics are very important for the board examination. ये board examination के लिए भी आपके लिए काफी जरूरी है, क्योंकि वहां से एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा. सिंटैक्स पूछ सकता है, नहीं सिंटैक्स पूछेगा तो आपको डेटा फ्रेम दिया रहेगा. देन आफ्टर दैट क्वेरी इज दैट कि add one column, add one row, otherwise delete the row, delete the column or whatever, something like. So चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं कि how we can add, how we can delete, and how we can rename, how we can label. The first one, adding the new column in a data frame. How we can add the new column in a data frame? We can easily add the new column in a data frame. Suppose that ये आपके पास एक data frame है. Here we have one data frame. Here we have one data frame, and in this data frame, if you will be notice that, then you will find out here we have a 3 column math, science and Hindi, and sorry, this is 3 row and column Arnab column, Ramit, Samriddhi, Riya, Malika. ठीक, तो ये हमारे पास ये 3 रो है and 1 2 3 4 5 column है. And suppose that if you want to add the other students name with their subject marks, math, science and Hindi, then how we can add the new column? So if you want to add the new column, then here we have a syntax कि first of all you write down the data frame name, जो भी आपके data frame का name है, and then in a square bracket you write down the new column name जो भी आपको data frame में add करना है. Then you write down record, जो भी आपको record entry करना. जैसे इस वाले column में मेरे पास 3 record है, इस वाले कॉलम के लिए आई हैव अ 3 रिकॉर्ड, फॉर दिस कॉलम आई हैव अ 3 रिकॉर्ड, फॉर दिस कॉलम आई हैव अ 3 रिकॉर्ड. सो फर्स्ट यू राइट डाउन द मेंशन द कॉलम नेम, देन आफ्टर दैट यू मेंशन द रिकॉर्ड व्हाट एवर यू वांट टू इंसर्ट फॉर दैट कॉलम. देन आप उसको प्रिंट करवा लीजिए एंड फाइनली यू विल गेट द आउटपुट. अब यहाँ पे देखिए, हियर वी हैव इंसर्ट 1 कॉलम, हियर वी हैव इंसर्ट 1 कॉलम. कॉलम इज व्हाट? Look at here. Assign the value to the new column label that does not exist will create a new column at end. जो भी कॉलम ऐड होगा वो आपका कहाँ पे ऐड होगा? एंड में. अब यहाँ पे देखिए ये अर्नब, राम, समृद्धि, रिया, मालिका के नाम से, और यहाँ पर लोगों ने एक कॉलम ऐड किया विद द नेम ऑफ प्रीति. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डेटा फ्रेम का नाम हो गया. आई वॉन्ट टू ऐड द 1 कॉलम विद द नेम ऑफ प्रीति, और उसका रिकॉर्ड क्या है? 89, 78, 76. और हम लोग जब फाइनली रिजल्ट प्रिंट कराएंगे उसका जो भी डेटा फ्रेम है, देन वी विल गेट द आउटपुट एंड इन अ लास्ट एंड ऑफ द डेटा फ्रेम ये जो लास्ट कॉलम है आपका प्रीति, उसमें क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा. इन दिस वे वी कैन ऐड द न्यू कॉलम इन अ डेटा फ्रेम. हाउ वी कैन ऐड? फर्स्ट ऑफ ऑल you mention the data frame name, then in a square bracket you write down the column name, and then after that you mention the record, how many record you want to add for that column. इस चीज का ध्यान देना, ठीक है. तो नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट?
इसको हम लोग ऐड करवा के भी देख, इसको कोडिंग के थ्रू अभी हम लोग चेक कर लेते हैं। इफ द कॉलम ऑलरेडी एग्जिस्ट, सपोज दैट आप कोई ऐसा कॉलम एग्जिस्ट, आप कोई ऐसा कॉलम ऐड करना चाह रहे हो जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो इन द डेटा फ्रेम देन द असाइनमेंट स्टेटमेंट विल अपडेट। तो वो क्या होगा, जो आपका सपोज दैट अगर आपने कोई भी ऐसा कॉलम है जो उसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट है और आप फिर से वैल्यू इंसर्ट करा रहे हो, तो उसको क्या करेगा, वो अपडेट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे रामित का सपोज हमको मार्क हम लोग फिर से एंट्री करवा रहे हैं, तो यहाँ पे रामित का मार्क्स क्या है 92, 81, 96। अब हम लोग इसको अपडेट करना चाह रहे हैं वैल्यू, तो हम लोग अपडेट करना चाहते हैं। हियर आई हैव राइट डाउन डेटा फ्रेम नेम रामित एंड देन आफ्टर दैट 99, 98, 78। देन यू विल नोटिस हियर, तो ये जो रामित का मार्क्स है वो अभी अपडेट हो चुका है 99, 98 एंड 78। इन दिस वे वी कैन अपडेट द कॉलम्स, जो भी हमारे पास डेटा फ्रेम में जो रिकॉर्ड है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉलम उसको हम लोग अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, वी कैन ऑल्सो चेंज द डेटा ऑन इंटायर कॉलम टू अ पर्टिकुलर वैल्यू इन द डेटा फ्रेम। सपोज करो अगर आपको कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू के थ्रू आपको पूरा डेटा, पूरा रिकॉर्ड आपको देना है, कि जैसे लाइक दैट यहाँ पे ये अर्नब के नाम का ये 90, 91, 97 है, एंड आई वांट टू राइट डाउन द सिंगल वैल्यू, I want to pass the single value for this data frame for a column अर्नव। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंटेक्स क्या, रिजल्ट, देन आफ्टर दैट डेटा फ्रेम का नाम अर्नव एंड इक्वल टू 90। आई हैव नोटिस हियर, देन रिजल्ट उसको हम लोग प्रिंट करवा लेंगे, देन व्हेनेवर वी विल प्रिंट दिस वन देन वी विल गेट आउटपुट दिस। ये इमेज क्लियर हो रहा है क्या आप लोग को? ओके, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज दैट, इसको लोग बाद में डिस्कस करते हैं, पहले रोको, पहले हम लोग कॉलम वाला ऑनलाइन देख लेते हैं कि आखिर ये होगा कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट अ डेटा फ्रेम, एंड इन अ लास्ट लेक्चर आई हैव ऑलरेडी डिस्कस यू कि हाउ वी कैन क्रिएट अ डेटा फ्रेम। देयर आर 6 मेथड टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम। तो हियर आई एम गोइंग टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम विद द क्रिएट अ डेटा फ्रेम लिस्ट ऑफ डिक्शनरी ऑफ लिस्ट, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट बाय द मेथड डिक्शनरी ऑफ लिस्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई इंपोर्ट द pandas, import pandas spd, ये हम लोगों ने इंपोर्ट करा लिया। देन आफ्टर दैट नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट अ लिस्ट, उसके अंदर डिक्शनरी क्रिएट सीरीज सॉरी डिक्शनरी ऑफ लिस्ट है, तो हम डिक्शनरी क्रिएट करने जा रहे हैं। डिट के नाम का एक वेरिएबल ले लिया। नाउ कॉलम का नेम, सपोज दैट वही स्टूडेंट्स का नाम हम लोग इंसर्ट कर ले रहे हैं, ABHAY अब है, और इसका मार्क एंट्री कर दे रहा है लिस्ट में। 3 सब्जेक्ट सपोज दैट अगर है 12, 13, 10, 3 रहता है। देन आफ्टर दैट सेकेंड स्टूडेंट नेम अजय, now insert the column and here you write down 15, 12, 14 semicolon, insert the new name and here you write down the Vinay, VINAY, then after this one and here आप इसको नोट डाउन करो, 3 मार्क्स जो भी आपको नोट डाउन करना है, सपोज करो 21, 23, 24, ठीक है। नाउ क्लोज द कर्ली ब्रेसेस, गो डाउन साइड एंड नाउ आई वांट टू कन्वर्ट दिस डिक्शनरी इनटू द डेटा फ्रेम। तो व्हाट आई विल राइट डाउन, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक ए वन वेरिएबल विद द नेम ऑफ df, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो किसी भी नाम से,
एंड हियर यू राइट डाउन PD, आप PD को कॉल कर लो, डॉट डेटा फ्रेम, D राइट इन कैपिटल लेटर, डेटा फ्रेम, एंड F also write in capital letter, and I want to convert this dictionary जो मैंने डिक्ट नाम का लिया हुआ है, DICT, देन आफ्टर दैट आप प्रिंट करा लो डेटा फ्रेम को, PRINT प्रिंट DF, ओके। यहाँ पे हम लोग इसको रन करवा लेते हैं, देन वी विल गेट व्हाट इज द आउटपुट, चेक किया जाता है। ओके, लुक एट दिस, हियर we get the output, Abhay, Ajay and Vinay, and their marks 12, 13, 10, 15, 12, 14, 21, 23, 21, 23, 23। लास्ट टाइम हम लोगों ने भी डिस्कस किया था कि हाउ वी कैन लेबल द इंडेक्स। सपोज दैट इफ यू वांट टू लेबल द इंडेक्स, देन हाउ वी कैन लेबल द इंडेक्स। तो हम लोग इसको लेबलिंग कर लेते हैं कि हम लोग उसको लेबल कैसे करना। तो यू गो ऑन देयर, रन करवा, ओके। नाउ लुक एट दिस, here we have created one data frame with the help of dictionary of list। तो डिक्शनरी ऑफ लिस्ट के थ्रू क्रिएट किया गया, हम लोग डिक्शनरी बनाए, डिक्शनरी के अंदर ये हम लोगों ने लिस्ट बनाया। अब इसका इंडेक्सिंग किया गया, रो नाम का एक वेरिएबल लिए जिसमें हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स को हम लोग क्या किए हैं, असाइन कर दिए वैल्यू। देन आफ्टर दैट दिस रो वी हैव कन्वर्ट एज अ इंडेक्स फॉर द डेटा फ्रेम दिस वन। तो ये आपका हिंदी, इंग्लिश और मैथ, ये आपका इंडेक्स क्रिएट हो जाएगा। इन दिस वे वी कैन क्रिएट अ डेटा फ्रेम। Suppose that in this data frame I want to add the other student's name, then how we can add it? तो उसको ऐड करने के लिए आप क्या करोगे, अगर आपको ऐड करना तो अभी ऑलरेडी आई हैव डिस्कस यू कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेंशन द डेटा फ्रेम नेम, देन आफ्टर दैट इन अ स्क्वायर ब्रैकेट यू राइट डाउन द कॉलम नेम, एंड देन आफ्टर यू राइट डाउन द रिकॉर्ड जो भी आपको ऐड करना है। तो हमारे डेटा फ्रेम का नेम क्या है, DF है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, DF। उसके बाद आप स्क्वायर ब्रैकेट में मेंशन करोगे, क्या मेंशन करोगे, जो कॉलम आपको ऐड करना है। सपोज दैट आई वांट टू ऐड द कॉलम, कॉलम का नेम है आकाश, आकाश को ऐड करना। तो आप यहां पे चले जाइए, एंड देन आफ्टर यू राइट डाउन हाउ मेनी रिकॉर्ड आई हैव टू ऐड, 1 2 3। तो आप 3 रिकॉर्ड इसमें ऐड कर लो कोई भी, जैसे सपोज करो ये 12 हो गया, 23 हो गया, 34 हो गया। Now go on there, print DF, डेटा फ्रेम को प्रिंट करवा लीजिए। देन व्हाट यू विल गेट द आउटपुट, इसको चेक किया जाता है। नाउ रन दिस वन एंड लुक एट दिस। अगर आप इसको नोटिस कर पा रहे होगे, ये आपका पुराना डेटा फ्रेम है, दिस वन, दिस इज in this data frame I have only 3 column, ठीक है। and in this line look at this, data frame का name, then after that column का name, then after that record whatever you want to insert for that column, and finally हम लोगों ने इसको प्रिंट करा लिया। तो आपको यहाँ पे एक नया रिकॉर्ड देखने को मिलेगा, ठीक है, with the value 12, 23 and 34। एंड वन मोर थिंग यू नोटिस हियर कि सपोज दैट अगर आपका 3 रिकॉर्ड है तो आप 3 ऐड करोगे, 4 ऐड करेंगे, देन वी विल गेट अ एरर कि आपको मिस मैच का एरर आ जाएगा कि रो और कॉलम आपका मैच नहीं कर रहा है। सो इस चीज का आप लोग ध्यान दीजिएगा, ओके। तो इन दिस वे वी कैन ऐड द कॉलम। सेकेंड वन, सपोज दैट अगर हमको किसी का वैल्यू अपडेट करना है, जैसे मान लो ये अभय का है, तो यहाँ पे 12, 13, 10 लिखा हुआ है, एंड आई वॉन्ट टू अपडेट द मार्क ऑफ अभय, देन हाउ वी कैन अपडेट दिस वन। इफ यू वांट टू अपडेट, तो सबसे पहले मैं आपको ये हाइड कर दे रहा हूं, ये वाला लाइन मैं एज अ कमेंट कर देता हूं। एंड नाउ डाउन साइड यू राइट डाउन, क्या लिखेंगे, डेटा फ्रेम का नाम, देन आफ्टर दैट यू मेंशन द कॉलम नेम जिसको आपको अपडेट करना है। आई वांट टू अपडेट द मार्क्स ऑफ अभय, तो हियर यू राइट डाउन अभय, एज इट इज लिखना है, स्मॉल लेटर तो स्मॉल, कैपिटल लेटर तो कैपिटल, ABHAY, अभय हो गया। हमको इसको अपडेट करना है, तो आपको जो भी न्यू एंट्री चाहिए आप न्यू कॉलम इसमें न्यू रिकॉर्ड इसमें आप इंटर कर दीजिए। तो न्यू रिकॉर्ड सपोज करो आई वांट टू 23, 34, 31,
Okay, now run this one, then what you will get the output. Look at here. सबसे पहले जो अभय का मार्क था ये 12, 13 एंड 10 था, इसको हम लोगों ने अपडेट कर लिया। अपडेट किया तो यहां पे क्या हो गया 23, 34, 31। इज दैट क्लियर? आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हम लोग किसी भी डेटा फ्रेम में अगर कोई भी कॉलम के मार्क्स, किसी भी कॉलम के रिकॉर्ड को अगर हमको अपडेट करना है, देन हाउ वी कैन अपडेट दैट वन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेंशन द डेटा फ्रेम नेम, देन आफ्टर दैट कॉलम नेम, देन आफ्टर दैट यू राइट डाउन द आपको जो अपडेटेड वैल्यू है, आप अपडेटेड वैल्यू वहां पे राइट कर लो तो आपका अपडेटेड वैल्यू उसके लिए असाइन हो जाएगा जो आपका डेटा फ्रेम है। हम लोगों ने दो चीज सीखा, फर्स्ट ऑफ ऑल कि न्यू रिकॉर्ड, न्यू कॉलम ऐड कैसे करना है, एंड सेकंड वन इज हाउ वी कैन अपडेट द रिकॉर्ड जो ऑलरेडी इसमें एग्जिस्ट है। नाउ थर्ड वन, सपोज दैट आप किसी भी डेटा फ्रेम को सेम वैल्यू पास करना चाह रहे हो, कि हम चाह रहे हैं कि नहीं, जैसे मान लो ये अजय है तो हम चाह रहे हैं कि इसका सारा वैल्यू सेम हो, देन हाउ वी कैन डू दिस। अगर ऐसा कुछ करना तो इसको आप लाइन को आप कमेंट कर दो, इस लाइन को लोग कमेंट कर लेते हैं। एंड नाउ हियर यू राइट डाउन सेम डेटा फ्रेम का नेम, देन आफ्टर दैट कॉलम का नेम, जिसको भी आपको सेम वैल्यू असाइन करनी है, इंडिविजुअल वैल्यू, सिंगल वैल्यू असाइन करना है, तब उसको यहां पे मेंशन करो। देन यू विल बी मेंशन हियर, सपोज करो ये विनय है तो आप विनय के लिख लो विनय, एंड आपको जो भी सिंगल वैल्यू असाइन करना है पूरे रिकॉर्ड के लिए, ठीक है, विदाउट कॉलम या विदाउट सेमी कॉलम, सॉरी कुछ मतलब कोई भी आपको वैल्यू उसमें नहीं रखना, साइन सिंबल डायरेक्ट आप इंसर्ट करा लो एंड रन हियर। देन यू विल नोटिस दैट कि विनय का जो यहां पे रिकॉर्ड है, विनय का जो मार्क्स है, हिंदी के लिए पहले 21 था, 23 था, 23 था। नाउ ऑल द रिकॉर्ड हैव चेंज विद द नंबर 23, ठीक है। तो कॉलम के लिए हम लोगों ने तीन चीज पढ़ा, फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम लोग कॉलम को ऐड कैसे करेंगे, सेकेंड वन हम लोग हाउ वी कैन अपग्रेड द रिकॉर्ड इन द डेटा फ्रेम विद द हेल्प ऑफ कॉलम, एंड थर्ड वन कि हाउ वी कैन असाइन द सिंगल वैल्यू फॉर अ कॉलम। अगर हमको किसी भी सिंगल वैल्यू असाइन करना किसी डेटा फ्रेम के लिए तो ये कैसे हम लोग करेंगे, ठीक है। एक बार हम लोग एक बार सिंटैक्स डिस्कस कर लेते हैं, सिंटैक्स क्या है तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट वन, जैसे सपोज करो अगर आपको डेटा फ्रेम ऐड करना, कॉलम ऐड करना है तो सबसे पहले आप डेटा फ्रेम का नेम मेंशन करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेंशन द डेटा फ्रेम नेम, जो भी आपका डेटा फ्रेम का नेम है। देन आफ्टर इन ए स्क्वायर ब्रैकेट यू राइट डाउन द कॉलम नेम, कॉलम का जो भी आपका नेम है कॉलम का नेम लिखोगे, एंड देन यू राइट डाउन द रिकॉर्ड, जितने भी रिकॉर्ड आपको इंसर्ट कराना है, एंड देन इसको प्रिंट करा लोगे डेटा फ्रेम को, देन यू विल गेट द सेम। और अगर सिंगल वैल्यू असाइन करनी है किसी भी डेटा फ्रेम के लिए तो डेटा फ्रेम का आप नेम लिखोगे, देन इन ए स्क्वायर ब्रैकेट यू राइट डाउन द कॉलम नेम जिसके लिए आपको सिंगल वैल्यू असाइन करना है, देन हियर यू राइट डाउन द वैल्यू जो भी आपको असाइन करना सिंगल वैल्यू। सेकंड, थर्ड वन, अगर कोई भी कॉलम हमको अपडेट करना है देन हाउ वी कैन अपडेट दिस वन, राइट डाउन द कॉलम नेम एंड राइट डाउन द अपग्रेडेड वैल्यू जिसमें भी आपको अपग्रेड करना है। इन दिस वे वी कैन वर्क विद द कॉलम इन अ डेटा फ्रेम। सेकंड टॉपिक इज दैट हाउ वी कैन वर्क विद रो, अगर रो को ऐड करना है, ठीक है, रो को डिलीट करना है, या फिर हम लोग कैसे रो के साथ काम करेंगे तो हम लोग ये सेकंड टॉपिक देखने का। ओके, now the second topic is that next topic, adding the new row to a data frame, how we can add the new row in a data frame। अगर हम लोग कोई भी डेटा फ्रेम ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे, तो we can add the new row to a data frame using the data frame dot loc। आप इसको याद रखिएगा dot loc को, कॉलम के लिए कुछ नहीं है, डेटा फ्रेम का नाम फिर कॉलम का नेम। लेकिन सपोज दैट इफ यू वांट टू ऐड द रो देन हाउ वी कैन ऐड इट, तो विद द हेल्प ऑफ डेटा फ्रेम डॉट IOC, देन आफ्टर यू ब्रैकेट आपको ओपन और क्लोज कर लेना, जो भी आपको यहाँ पे कॉलम का रो का ऐड करना है वहां पे, ये आपका मेथड हो गया। सिंटैक्स देख लीजिए इसका, डेटा फ्रेम का नेम, देन आफ्टर डॉट LOC, ये कॉलम का नेम, जो भी आपको कॉलम का नेम नहीं, यहाँ पे रो का नेम होगा, मिस्टेक हो गया,
क्योंकि हम लोग कॉलम नहीं ऐड करना, हम लोग को रो ऐड करना। जो भी आपको रो इंसर्ट करना, ये टाइपिंग एरर है, सॉरी। और जो भी आपको रिकॉर्ड इंसर्ट करना है इस रो के लिए, आप यहाँ पे इंसर्ट करा लोगे एंड फाइनली आप उसको प्रिंट करवा लोगे। कंसीडर द डेटा फ्रेम रिजल्ट DF दैट हैज द 3 रो फॉर द 3 सब्जेक्ट, मैथ है, साइंस है एंड हिंदी है। सपोज वी नीड टू ऐड द मार्क्स फॉर द इंग्लिश सब्जेक्ट, ठीक है, तो वी कैन यूज द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये नेक्स्ट वाले PDF में आप देखिए। This one, next one. Here we have a one data frame, मैथ है, साइंस है, हिंदी है, ठीक है, तो यहाँ पे उसका ये मार्क्स मेंशन है। एंड सपोज दैट इफ यू वांट टू ऐड द वन मोर रो, वन मोर इंडेक्स इन दिस डेटा फ्रेम, देन हाउ वी कैन ऐड दिस वन। तो आप सबसे पहले डेटा फ्रेम का नेम मेंशन करोगे, और अगर आपको रो इंसर्ट करना है तो आप .loc ये वहां पे ऐड करना है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड वी कैन ऐड द वन इंडेक्स और वन रो। देन आफ्टर दैट यू राइट डाउन द, जो भी आपको रो इंसर्ट करना है, देन रिकॉर्ड राइट डाउन एंड फाइनली आप उसको प्रिंट कराओगे तो आप देखोगे यहाँ पे लास्ट वाले कॉलम, लास्ट वाला रो जो है इसमें इंग्लिश ऐड हो गया। तो हाउ वी कैन ऐड दिस वन, इसको हम लोग अभी कोडिंग के थ्रू चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट वन, हाँ, सपोज दैट अगर आपने किसी ऐसे रो को ऐड किया जो ऑलरेडी उसमें एग्जिस्ट है, तो वही सेम जैसे कॉलम में अपडेट हो जा रहा था वैल्यू, उसने उसी तरह से इसमें रो में भी अपडेट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखिए, हम लोगों ने इंग्लिश की वैल्यू इसमें इंसर्ट किया है, तो इंग्लिश का वैल्यू ऑलरेडी इसमें था पहले से, लेकिन हम लोग जब इंसर्ट करेंगे तो ये यहाँ पे ये वैल्यू आपका चेंज हो जाएगा। ये दोनों फ्रेम सेम है क्या, एक सेकेंड, 85, 86, 83, 85, अच्छा ये दोनों टेबल सेम है, ठीक है। अपग्रेड के लिए आप यहाँ पे आ जाओ, लुक एट दिस एग्जांपल। इंग्लिश को लोगों ने अपग्रेड करना है, देन हाउ वी कैन अपग्रेड दिस वन, राइट डाउन द डेटा फ्रेम नेम .loc, देन आफ्टर दैट यू राइट डाउन द कॉलम नेम, रो नेम दैट यू वांट टू अपग्रेड। तो यहाँ पे हम लोगों ने रो का नेम लिखा है। यहाँ पे रो देखो, जो इंग्लिश है यहाँ पे वैल्यू क्या है, 85, 86, 83, 80, 90, 89, ओके। नाउ आई वांट टू अपग्रेड दिस वन, तो हम लोग क्या करेंगे, आप कॉलम यहाँ पे रो का नेम मेंशन करोगे और यहाँ पे आप अपडेटेड वैल्यू नोट डाउन करोगे। देन यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले 85 था, 95 हो गया, 86, 86, 83, 95, 80, 80, 90, 95 और 89 कन्वर्ट इनटू द 99। इन दिस वे वी कैन अपग्रेड द रिकॉर्ड इन द डेटा फ्रेम विद द हेल्प ऑफ रो मेथड, रो LOC मेथड। इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे पास रो का रिकॉर्ड है उस रो के रिकॉर्ड को हम लोग इस वाले मेथड के थ्रू अपग्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट, डेटा फ्रेम .loc मेथड कैन आल्सो बी यूज टू चेंज द डेटा वैल्यू। अगर आपको कोई भी डेटा वैल्यू चेंज करना है ऑफ द रो टू अ पर्टिकुलर वैल्यू, जैसे कॉलम में हम लोग देखे थे ना कि सिंगल वैल्यू से पूरे रिकॉर्ड को हम लोग चेंज कर रहे थे, इन द सेम वे हम लोग इसको भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये मैथ का सब्जेक्ट है, तो डेटा फ्रेम का नाम .loc, कॉलम का नेम, रो का नेम, जो भी आपका इंडेक्स है, देन यू राइट डाउन इक्वल टू 0। जो भी आपको इंडिविजुअल वैल्यू से रिप्लेस करना आप यहाँ पे मेंशन करोगे, देन यू विल नोटिस दैट कि यहाँ पे जो मैथ्स का मार्क्स है फॉर ऑल द स्टूडेंट इट विल बिकम 0, ठीक। तो हम लोगों ने 3 चीज इसने भी देखा है, जैसे कॉलम में देखा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ वी कैन ऐड द रो, हाउ वी कैन अपग्रेड द रो रिकॉर्ड, एंड थर्ड वन इज हाउ वी कैन पास द सिंगल वैल्यू फॉर टू ऑल रिकॉर्ड फॉर द रो। जो भी हमारे पास रो दिया हुआ उसके लिए सिंगल वैल्यू कैसे पास करेंगे। तो आप यहाँ पे आ जाइए, उसको चेक कर लेते हैं ऑनलाइन कोडिंग के थ्रू। गो ऑन देयर। ऑलरेडी हमारे पास एक डेटा फ्रेम है, इसको हम लोग कमेंट कर लेते हैं, दिस लाइन, ये हम लोगों ने कमेंट कर लिया, ठीक है। नाउ आई वांट टू ऐड वन रो,
I want to add one row, then how we can add this one? If you want to add the one row, then how you can add? तो here you write down, सबसे पहले डेटा फ्रेम का नाम लिखना है, तो डेटा फ्रेम df डॉट loc, उसके थ्रू हम लोग कॉल करेंगे. देन यू राइट डाउन रो नेम. अब यहाँ पे मेरे पास एक बार इसको रन करवा लेते कोड को, तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा. ठीक है, ये अभी हम लोग कमेंट करते हैं ताकि एरर ना आए, क्योंकि हम लोग तो उसके ऊपर भी काम करना है हम लोग को. ये आपका डेटा फ्रेम ओरिजिनल. ठीक, आई वांट टू ऐड वन मोर रो, देन हाउ वी कैन ऐड. अब इसको हाइड कमेंट से कोडिंग कर लेते हैं. डेटा फ्रेम का नेम df है. देन आफ्टर दैट loc फंक्शन हम लोग वो मेथड है. हियर यू राइट डाउन कौन विच रो यू वांट टू ऐड, तो रो का नाम आप यहाँ पे मेंशन कर लो. सपोज दैट हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, हम लोग को साइंस ऐड करना है, तो आप यहाँ पे लिखोगे साइंस. साइंस लिख लिया. ठीक, अब साइंस के लिए स्टूडेंट्स का जो भी मार्क्स है, तो हियर आई हैव टू इंसर्ट द 3 रिकॉर्ड, तो आप 3 रिकॉर्ड इंसर्ट कर लो विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट. चलो, तो 3 रिकॉर्ड आप यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं जल्दी जल्दी. 12, 23, 34. ठीक है, और एक काम और करते हैं ताकि आप लोग इजिली इसको कंपेयर कर पाओ. print प्रिंट df. ठीक है, ये आपको पुराने वाला डेटा फ्रेम दिखाएगा और ये आपका अपग्रेडेड डेटा फ्रेम दिखाएगा आफ्टर एडिंग द रो. इसको रन करवा लेते हैं. ओके, नाउ लुक एट दिस. अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो हियर इन ए ओल्ड डेटा फ्रेम आई हैव ओनली 3 रिकॉर्ड और यू कैन से दैट 3 इंडेक्स. लेकिन अभी हम लोगों ने क्या किया, उसको हम लोगों ने अपग्रेड कर दिया. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक और रो ऐड किया या फिर आप एक इंडेक्स ऐड किया हम लोगों ने विद द नेम ऑफ साइंस. कैसे ऐड करेंगे, अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड. फर्स्ट ऑफ ऑल आप डेटा फ्रेम का नेम लिखोगे. देन आफ्टर दैट यू कॉल द फंक्शन loc मेथड से ही आपका एंट्री इंडेक्स एंट्री होगा. देन यू राइट डाउन, यहाँ पर हम लोगों ने साइंस इंसर्ट किया तो आप लिखोगे साइंस डबल कोटेशन क्लोज. तो फॉर द साइंस आई हैव 3 रिकॉर्ड बिकॉज 3 कॉलम्स आर देयर, तो यहाँ पे 3 रिकॉर्ड आप मेंशन कर लोगे जो भी आपको इंसर्ट कराना है. 3 रिकॉर्ड आप इंसर्ट करा लो. देन दिस 3 रिकॉर्ड इज असाइन फॉर द साइंस इंडेक्स और ये आपका फाइनली ये इंसर्ट हो जाएगा. इन दिस वे वी कैन इंसर्ट. सेकेंड वन, सपोज दैट इफ यू वांट टू अपग्रेड, अगर आपको कोई भी कॉलम क्या करना है, कोई भी इंडेक्स अपग्रेड करना, मैथ्स का मार्क्स अपग्रेड करना है, इंग्लिश का मार्क्स अपग्रेड करना है, देन हाउ वी कैन अपग्रेड दिस वन. तो सेम मेथड है, इसको कमेंट कर लेते हैं कोड को आप कमेंट कर ले. अगेन यू गो ऑन देयर and here you write down df dot loc and write down the column name जिसको भी आपको अपग्रेड करना है. सपोज दैट हमको इंग्लिश का मार्क्स अपग्रेड करना है, तो here you write down इंग्लिश लिख लिया एंड यू राइट इन डबल कोटेशन क्योंकि आपका ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग ऑलवेज मेंशन इन अ डबल कोट. ओके, नाउ इक्वल टू साइन. अब कितने रिकॉर्ड है इंग्लिश के लिए हमारे पास, 1 2 3 रिकॉर्ड है, तो आप 3 रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट करा दो. नाउ 3 रिकॉर्ड कुछ भी इंसर्ट करा लो, 45, 23, 31. ओके, और हम लोग इसको रन करवा लेते हैं एंड लुक एट दिस व्हाट वी विल गेट. हाँ, देखिए यहाँ पे इंग्लिश का जो प्रीवियस डेटा फ्रेम था वहाँ पे जो रिकॉर्ड है वो 13 है अभय के लिए, अजय के लिए 12 है और विनय के लिए 23 है. बट नाउ वी हैव अपग्रेड द रिकॉर्ड, तो अपग्रेड किया है तो 13 इज रिप्लेस्ड बाय 45, 12 इज रिप्लेस्ड बाय 23 एंड 23 इज रिप्लेस्ड विथ 31. तो इन दिस वे, इन दिस मेथड वी कैन अपग्रेड द रिकॉर्ड ऑफ अ डेटा फ्रेम. जो भी आपका इंडेक्स के लिए जो भी रिकॉर्ड है डेटा फ्रेम में हम लोग उसको अपग्रेड कर सकते हैं. एंड थर्ड वन इज suppose that if you want to pass a single value for all the record of index, अगर हमको कोई भी सिंगल वैल्यू पास करना है किसी भी एक रिकॉर्ड किसी एक इंडेक्स के लिए, then how we can pass it. तो उसको पास करने के लिए आप देख लीजिए क्या करना है. अगेन इस वाले को हम लोग हाइड कर लेते हैं, इन डिसेबल, और
यहाँ पे सेम कंडीशन है। सपोज करो हमको इंग्लिश हिंदी के लिए सबके लिए 0 0 करना है, कोई मतलब कोई भी सिंगल वैल्यू हमको पास करना है, देन हाउ वी कैन पास। डेटा फ्रेम का नेम और डॉट LOC, एल कैपिटल लेटर, सॉरी एल आपका स्मॉल लेटर में, इस चीज का ध्यान दीजिएगा, कैपिटल लेटर में नहीं होगा। ये एरर कोडिंग, जब ये कोडिंग डिटेक्शन के लिए आएगा कि फाइंड आउट द एरर इन दिस कोड। देन हियर यू राइट इन अ स्क्वायर ब्रैकेट जो भी आपको वैल्यू, जिस भी इंडेक्स के लिए आपको सिंगल वैल्यू पास करना है, आप वहां पे मेंशन करोगे। तो डबल कोटेशन में आप यहाँ पे राइट कर लो। सपोज करो हमको हिंदी के लिए करना है तो आप हिंदी लिख लो, ठीक है। देन आफ्टर दैट पास द वैल्यू, सिंगल वैल्यू जो भी आपको पास करना है। सपोज करो मैं पास करना चाह रहा हूं 50 पास करना, तो मैं 50 पास कर रहा हूं। देन रन हियर एंड लुक एट हियर, you will get the output what is in the first data frame for Hindi subject ये 12 है, अभय का मार्क्स, अजय का मार्क्स 15 है, विनय का मार्क्स 21 है। लेकिन अभी हम लोगों ने इसको क्या किया, सिंगल वैल्यू असाइन कर दिया सबके लिए। तो यहाँ पे हिंदी का 50 हो गया, अजय का 50 हो गया और विनय का भी क्या हो गया 50। तो हियर आई हैव डिस्कस यू द 3 ऑपरेशन विद द 3 ऑपरेशन ऑफ रो इन अ डेटा फ्रेम। तो डेटा फ्रेम में क्या, पहले तो हाउ वी कैन ऐड द रो, सेकंड वन हाउ वी कैन अपग्रेड द रो रिकॉर्ड इन अ डेटा फ्रेम, एंड थर्ड वन हाउ वी कैन पास द सिंगल वैल्यू फॉर अ इंडेक्स इन अ डेटा फ्रेम। इज दैट क्लियर? आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। एंड नाउ द थर्ड ऑपरेशन इज थर्ड वन, अगर सपोज करो कि डिलीटिंग द रो और कॉलम फ्रॉम द डेटा फ्रेम, अगर आपको कोई भी रिकॉर्ड आपको डेटा फ्रेम में से डिलीट करना है, ठीक है, रिकॉर्ड नहीं सॉरी, अगर आप कोई भी कॉलम डिलीट करना चाह रहे हो या फिर कोई भी रो डिलीट करना चाह रहे हैं, देन हाउ वी कैन डिलीट द रो एंड कॉलम फ्रॉम द डेटा फ्रेम। तो वी कैन यूज द डेटा फ्रेम डॉट ड्रॉप, इस चीज को याद रखिएगा, डॉट ड्रॉप, डेटा फ्रेम का नेम डॉट ड्रॉप। ड्रॉप क्या है? डॉट ड्रॉप, ये फंक्शन है। इस फंक्शन के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, कॉलम को और रो को वहां से रिमूव कर सकते हैं। कहां से? डेटा फ्रेम में से। जैसे हम लोग वहां पे डॉट LOC था इंडेक्स जनरेट करने के लिए, उसी तरह से यहाँ पे डॉट ड्रॉप फंक्शन है जिसके थ्रू हम लोग कॉलम या फिर रो को रिमूव कर सकते हैं डेटा फ्रेम में से। कैसे करेंगे? टू डिलीट अ रो, अगर सपोज करो आपको कोई भी रो डिलीट करना है, द पैरामीटर एक्सिस इज असाइन द वैल्यू 0। तो हम लोग वहां पे एक एक्सिस, एक पैरामीटर पास करते हैं, एक्सिस के नाम से होता है, ठीक है। तो उस एक्सिस को हम लोग क्या पास करेंगे? 0 पास करेंगे तो रो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। फॉर डिलीटिंग द कॉलम, अगर आपको कॉलम डिलीट करना है तो जो एक्सिस आप पास करोगे वो क्या पास करोगे? 1। अब ये समझ में नहीं आ रहा होगा सर ये एक्सिस क्या है, या फिर हम लोग की मतलब ये एक्सिस का काम क्या है, एक्सिस 0 कह रहे हैं, एक्सिस 1 कह रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग जब कोडिंग करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सपोज दैट ये हमारे पास एक डेटा फ्रेम है विद द नेम ऑफ रिजल्ट डेटा फ्रेम, DF लिखा हुआ है। यहाँ पे वही सेम डेटा फ्रेम जो हम लोग प्रीवियसली आई हैव डिस्कस यू कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 कॉलम है, 1 2 3 4 रिकॉर्ड है, ठीक है। तो हम लोग इसको देख लेते हैं आगे। ओके, नहीं दिया तो हम लोग अब इसको पहले करके देखते हैं कि अगर हम लोग सपोज दैट आई वांट टू डिलीट द एनी रो और कॉलम फ्रॉम द डेटा फ्रेम, देन हाउ वी कैन डिलीट दिस। इस कोड को हम लोग थोड़ा सा हाइड करते हैं, ये शिफ्ट क्यों नहीं हो रहा, चलो कोई बात नहीं। यहां से हम लोग ये एंटर कर लेते हैं फटाफट और इसको हम लोग करते हैं डिसेबल। कमेंट हो गया, देन और कुछ कमेंट करना, इसको भी कमेंट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग एक बार पहले रन करवा लेते हैं। नाउ हियर वी हैव अ डेटा फ्रेम, दिस वन जो आपका ओरिजिनल डेटा फ्रेम है। अब हमको इसमें से कोई भी कॉलम अगर रिमूव करना है या कोई भी हमको रो रिमूव करना है तो हम लोग कैसे रिमूव करेंगे? तो ऑलरेडी आई हैव डिस्कस यू एंड वन टाइम अगेन आई एम गोइंग टू डिस्कस। करना क्या, सबसे पहले आप डेटा फ्रेम का नेम मेंशन करोगे। डेटा फ्रेम का नाम क्या है? हमारे डेटा फ्रेम का नाम है DF। यहां पे आप लिखोगे DF डॉट ड्रॉप। ड्रॉप लिखने के बाद इन अ पैरेंथेसिस यू राइट डाउन
जो भी आपको रिमूव करना है, जैसे आपका सपोज करो अगर आपको कॉलम रिमूव करना है तो एक्सिस 1 पास करोगे, और अगर आपको रो रिमूव करना है तो आप क्या पास करोगे, एक्सिस 0। तो सपोज करो अभी हमको मान लो विनय का कॉलम रिमूव करना है, तो हम लोग उसके लिए एक्सिस क्या पास करेंगे, 1, कॉलम के लिए एक्सिस 1 और रो के लिए एक्सिस 0। ये अपने दिमाग में रखना है, कॉलम के लिए एक्सिस 1, रो के लिए एक्सिस 0। तो अगर हमको विनय नाम का कॉलम इसमें से रिमूव करना है तो हियर यू राइट डाउन विनय। ठीक है, विनय लिखने के बाद आप कोटेशन से बाहर आओगे, कोट से, और यहां पे लिखोगे एक्सिस इज इक्वल टू, तो विनय तो कॉलम है तो एक्सिस क्या पास करेंगे हम लोग, 1। और डेटा फ्रेम को प्रिंट करवा लीजिए। डेटा फ्रेम को आप प्रिंट करवा लेते हैं तो व्हाट वी विल गेट, इसको रन करते हैं। ड्रॉप हुआ नहीं क्या, DROP एक्सिस 1 डेटा फ्रेम df डॉट ड्रॉप, क्या प्रॉब्लम है, एक सेकंड देखता हूँ क्यों ड्रॉप नहीं हो रहा। ड्रॉप फंक्शन विनर एक्सेस हमको 1 पास करना है। एक सेकंड, एडिंग द न्यू रो डेटा फ्रेम, ओके। इसके लिए आपको कोई ना कोई एक वेरिएबल असाइन करना पड़ेगा। न्यू डीएफ लिख लो, एनडीएफ, और यहां पे आप प्रिंट करा लो एनडीएफ। ओके, रन करा दें। एंड नाउ लुक, एक्चुअली द एरर इज दैट कि आपको जो है अभी यहाँ पे आप जो भी ड्रॉप करवा रहे हैं, जो भी रो या फिर कॉलम जो भी आपको ड्रॉप कराना, उसके लिए आपको एक वेरिएबल पास करना पड़ेगा। देन आफ्टर दैट यू प्रिंट दैट वेरिएबल। ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट लिख लो। एक बताते हैं कैसे प्रिंट उसको डायरेक्ट कर लेंगे हम लोग। लुक एट हियर, यहाँ पे हमारे पास एक विनय नाम का कॉलम था एंड दैट कॉलम इज रिमूव इन दिस डेटा फ्रेम। ठीक है, तो हाउ वी कैन रिमूव दिस वन? फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट डाउन द डेटा फ्रेम नेम, देन आफ्टर दैट ड्रॉप फंक्शन, देन आफ्टर दैट यू राइट डाउन द, अगर कॉलम को रिमूव करना है तो एक्सिस 1 पास करेंगे, और अगर रो को रिमूव करना है तो एक्सिस 0 पास करेंगे। देन फाइनली यू प्रिंट द डेटा फ्रेम। अच्छा, अगर इसमें कोई डाउट है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। एक बार हम लोग करके इसको चेक कर लेते हैं। आप यहाँ पे लिखो डायरेक्ट प्रिंट, पास होता है कि नहीं, PRINT प्रिंट, और ये आपका हो गया, इसको हाइड कर लेते हैं और रन। ठीक है, नहीं होगा, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू क्रिएट अ वन वेरिएबल, लेकिन यहां पे एरर क्या आ रहा है, वन मोर आई हैव टू क्लोज प्रिंट, एक और आप यहां पे क्लोज कर लीजिए और यहां पे कर लेते हैं नाउ रन। ठीक है, मिलेगा, वेरी गुड। ठीक, आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो प्रिंट और डेटा फ्रेम का नेम, ड्रॉप, जो भी कॉलम, जो भी हमको कॉलम रिमूव करना है, और उसके लिए एक्सिस 1 पास करेंगे। सपोज दैट इफ यू वांट टू रिमूव एनी रो,
हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, वॉट एवर, अभी साइंस तो है नहीं, मान लो सपोज करो हमको इंग्लिश रिमूव करना है, देन व्हाट आई राइट हियर, फर्स्ट हाइड द कोड, इसको हम लोग हाइड कर लेते हैं with the help of hash, then downside you write down print. I want to remove from this data frame English record या फिर English index, then how we can remove this one? तो here you write down data frame का नेम df dot drop, फंक्शन को आप कॉल करेंगे जो भी आपका मेथड है, then you write down the रो नेम, तो हमको रो कौन सा रिमूव करना है, इंग्लिश वाला, तो हियर यू राइट डाउन इंग्लिश, इंग्लिश लिख लिया, देन कॉमा और एक्सिस वैल्यू आप पास करोगे, तो एक्सिस पे क्या पास करेंगे, हमको रो रिमूव करना है तो 0, कॉलम रिमूव करना है तो 1, ये एमसीक्यू के लिए भी इसको आप प्रिपेयर करके रखना बोर्ड एग्जाम में, इसको रन करवा लेते हैं। And finally, if you will be noticed here, then what you will get the output, यहां पे देखिए, ये आपका this is your old index, old data frame, और यहां से आपका ये इंग्लिश वाला कॉलम क्या हो गया, इसमें अगर आप देखोगे ध्यान से तो रिमूव हो गया। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि हाउ वी कैन डिलीट रो एंड कॉलम फ्रॉम द डेटा फ्रेम। अगेन वन टाइम अगेन आई एम गोइंग टू राइट डाउन द ईयर सिंटैक्स। सबसे पहले करना क्या, आपको डेटा फ्रेम का नेम मेंशन कर लेना है, देन आफ्टर दैट यू कॉल द मेथड, मेथड क्या है DROP, देन यू राइट डाउन कॉलम। और अगर आपको सपोज करो रो रिमूव करना है तो आप एक्सिस क्या पास करोगे, रो रिमूव करना है तो 0, और अगर कॉलम रिमूव करना है तो एक्सिस यू विल पास व्हाट इज 1। ये आपका सिंटैक्स है, इसको आप प्रिंट करा लेना जो भी आपका डेटा फ्रेम होगा। इज दैट क्लियर? अगर किसी भी डाउट, कोई भी डाउट है कि इसको हम लोग कैसे करेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो उसका हम लोग पूरा सोल्यूशन देते हैं। फर्स्ट ये आप डेटा फ्रेम का नेम, फंक्शन का नेम, कॉलम का नेम तो एक्सिस 1 पास करेंगे, रो का नेम तो एक्सिस 0 पास करेंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है रीनेम द रो लेबल एंड कॉलम लेबल। हाउ वी कैन रीनेम, सपोज करो हमको अगर रीनेम करना है हिंदी, इंग्लिश, मैथ या फिर अभय को, अजय को या विनय को, हमको अगर कॉलम लेबल या रो का लेबल अगर हमको रीनेम करना है, देन हाउ वी कैन रीनेम। तो आपके यहाँ पे जो रीनेमिंग द रो एंड कॉलम लेबल, रीनेम रो या फिर कॉलम। अगर सपोज करो हमको इसको रीनेम करना, देन हाउ वी कैन रीनेम दिस वन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको कॉलम को रीनेम करना है तो कॉलम को रीनेम कैसे करेंगे, आप डेटा फ्रेम का नेम मेंशन कर लो, जो भी आपका डेटा फ्रेम का नेम है, देन यू राइट डाउन डेटा फ्रेम डॉट रीनेम, and here you write in a square and a curly bracket just wait for 2 minutes actually। Okay,
इसको हम लोग डायरेक्ट वहाँ पे समझते तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे आ जाओ, इस कोड को हाइड कर लेते हैं, कमेंट, एंड नाउ रन। यहाँ पे आ जाते हैं। सपोज दैट हमको इस विनय को रीनेम करना है, इस विनय को रीनेम करना विजय के नाम से। तो हम लोग ये रीनेम कैसे करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस जो डेटा फ्रेम का नाम है, इसका नाम है डेटा फ्रेम का डीएफ। आप लिखोगे डीएफ इज इक्वल टू डीएफ डॉट रीनेम, फंक्शन को कॉल करेंगे। देन इन ए कर्ली ब्रैकेट यू राइट डाउन, हमको विनय को रिप्लेस करना किससे? रिप्लेस करना विजय से, तो आप यहां पर लिखोगे विजय, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और ये आपका फाइनली क्लोज हो जाएगा। इन दिस वे वी कैन रीनेम, जो आपका डेटा फ्रेम में विनय है उसको हम रीनेम कर लेंगे विद द नेम ऑफ विजय। इसको हम लोग करके देख लेते हैं कि आखिर ऐसा होता है। नाउ गो ऑन देयर, और हमको इसको रीनेम करना है कॉलम को, तो आप यहां पे आ जाओ डेटा फ्रेम के पास, और फाइनली यू नोट डाउन हियर डेटा फ्रेम डीएफ इज इक्वल टू डीएफ डॉट रीनेम, ओके, एंड इन ए ब्रैकेट यू राइट डाउन, हम लोग को विनय को चेंज करना है तो यहां पे लिखना विनय, और विनय को रिप्लेस किससे करना है तो आप यहां पे लिखिए विजय, VIJAY, और फाइनली आप डीएफ को प्रिंट करवा लो, PRINT, प्रिंट डीएफ, ठीक है, रन करवा लेते हैं। किस लाइन में एरर है? लाइन नंबर 12, डीएफ डॉट रीनेम विनय विजय, ओके। हाँ, वन मोर थिंग, यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट आई हैव टू राइट इन कर्ली ब्रैकेट, देन आफ्टर दैट ये किसको कर्ली ब्रैकेट में राइट कर लेंगे, एंड हियर यू, ये आखिर विनय है क्या, तो हमको ये बताना पड़ेगा कि ये कॉलम्स है, तो आप यहां पे लिखोगे एक्सिस इज इक्वल टू कॉलम, एक्सिस इज इक्वल टू कॉलम्स। नाउ रन। कैन नॉट असाइन द लिटरल ईयर, मे बी यू मीन, अच्छा एक्सिस इज इक्वल टू हम लोग तो 0 भी लिख, कॉलम के लिए तो 1 लिख सकते हैं, एक बार चेक किया जाए। डीएफ रीनेम विनय को विजय से चेंज करना है, एक्सिस इज इक्वल टू 1, क्यों नहीं हो रहा है कोड? चलो एक और ट्राई, कॉलम डबल कोटेशन है, columns and now run। COLUMNS, हमको विनय को चेंज करना विजय से, यहाँ पे भी दिया कैन नॉट असाइन द लिटरल ईयर, मे बी मीन इक्वल टू DF इज इक्वल टू DF विनय डबल कोटेशन में विजय, ठीक है, एक्सेस कॉलम्स हो गया। एरर क्या हो सकते हैं यहाँ पे? सिंगल कोटेशन है क्या ये? लेकिन सिंगल कोटेशन से तो कोई मतलब नहीं है, चेक कर लेते हैं अभी। सिंगल कोटेशन राइट डाउन, सिंगल 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 सिंगल, नाउ रन। कॉलम्स के लिए भी सिंगल लिख लेते हैं।
Now run this one. Again we will get the error. क्या प्रॉब्लम है? df डॉट रीनेम करने के बाद आपने कॉलम को चेंज कर दिया, RENAME रीनेम, देन प्रिंट करा रहे हैं df को, तो ये नहीं हो रहा. एक्सेस इज इक्वल टू कॉलम्स, COLUMNS. एरर कहाँ पर है? df डॉट रीनेम. ये ऐसा तो नहीं कि इंडेक्स क्यों नहीं, इसको जरा हाइड करो. क्या एरर हो सकता है? df इजिकल टू pd डॉट डेटा फ्रेम डिक्ट इंडेक्स इजिकल टू रो, प्रिंट df इजिकल टू df डॉट रीनेम. ये भी सही लिखा है. विनय को रिप्लेस करना है विजय से, तो सिंगल सिंगल सिंगल. अच्छा, ये यहाँ पे इक्वल साइन नहीं रहेगा, ये प्रॉब्लम क्रिएट करा था इतने देर से. ये विनय को हमको रिप्लेस करना विजय से, so you don't write down the equal sign. Actually here you have to mention the column. Now run and finally you will get the output. आप यहाँ पे चेक कर लो, ये जो विनय है that name is replaced with the Vijay. How we can rename? तो first of all you write down the, आपको डेटा फ्रेम का नेम लिखना है, df का नेम लिखो. तो df डॉट रीनेम, देन आफ्टर दैट यू राइट डाउन द इन अ सिंगल कोटेशन और डबल कोटेशन जो भी आपको रीनेम करना है. मान लो हम लोग को विनय को करना है तो विनय को लिखा, एंड ओल्ड कॉलम नेम एंड न्यू कॉलम नेम सेपरेट बाय द कॉलम. तो आप नया लिख लो विजय. देन आफ्टर दैट ये कर्ली ब्रैकेट में इधर रहेगा, कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करना, कॉमा लिखना, देन यू पास द एक्सेस पास कर लेंगे आप. तो एक्सेस इज इक्वल टू कॉलम, हमको चेंज करना तो कॉलम, एंड देन आफ्टर दैट फाइनली यू क्लोज द ब्रैकेट, और आप इस df को प्रिंट करवा लोगे, देन यू विल गेट द आउटपुट दिस वन. आप यहाँ पे देखेंगे ये जो विनय है ये विजय से क्या हो गया, चेंज हो गया. इन दिस वे वी कैन रीनेम द कॉलम लेवल. सपोज दैट सेम अगर आपको रो लेवल चेंज करना है तो यहाँ पे आपको एक्सेस की जगह पे क्या पास करोगे, इंडेक्स. इन अ प्लेस ऑफ एक्सेस इन आप कॉलम की जगह क्या लिखेंगे, इंडेक्स नोट डाउन करेंगे हम लोग. जैसे इसको चेक कर लेते हैं, कॉलम एक बार रो को चेंज करा करके. कंडीशन सेम है. चलो सबसे पहले हम लोग इसको हाइड कर लेते हैं. कमेंट कमेंट कमेंट, इसको आप कमेंट कर लीजिए. नाउ रन दिस वन. ये आपके पास डेटा फ्रेम है. नाउ आई वांट टू रीनेम, या फिर आई वांट टू, इसको हम लोग को रीलेबलिंग करना है. इंग्लिश की जगह पे सपोज करो साइंस लिखना है. देन हाउ वी कैन रीनेम दिस वन. तो आप यहाँ पे आ जाइए, क्या लिखेंगे, डेटा फ्रेम को पहले आप मेंशन कर लो, वेरिएबल जो आपका. देन आफ्टर दैट यू राइट डाउन द डेटा फ्रेम नेम. डेटा फ्रेम का नेम हमारे df है डॉट, हम लोग को रिमूव करना है तो ड्रॉप फंक्शन DROP. देन इन अ ब्रैकेट यू मेंशन, कर्ली ब्रैकेट में क्या मेंशन करेंगे, रो का नेम. तो रो क्या है हमारे पास, क्या इंग्लिश है, आप यहां पे लिखो इंग्लिश. देन आफ्टर
इंग्लिश को हमको रिप्लेस करना किससे, साइंस से, तो आप यहां पे लिखेंगे साइंस। ठीक है, अब हम लोग को एक्सेस पास करना है, तो एक्सेस पास करो। आखिर किसके लिए हम लोग ये कर रहे हैं, जो रीनेम कर रहे हैं, तो आप एक्सेस पास करोगे इंडेक्स। कॉलम के लिए कॉलम लिखेंगे, लेकिन रो के लिए रो नहीं लिखेंगे। वी हैव टू मेंशन व्हाट इज इंडेक्स। फॉर रो व्हाट वी हैव टू मेंशन इंडेक्स। आप यहां पे इंडेक्स मेंशन करोगे, तो हियर यू राइट डाउन द इंडेक्स। इंडेक्स आप मेंशन कर लो, ये आपका हो जाएगा। ओके, इंडेक्स मेंशन कर लिया। अब डेटा फ्रेम को आप प्रिंट करा लो, प्रिंट डीएफ, एंड फाइनली यू रन दिस वन, देन व्हाट यू विल गेट द आउटपुट। तो अगर आप यहां पे ये क्या, अच्छा वो ड्रॉप कर दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, हम लोग को ड्रॉप नहीं करना है, रीनेम करना है। आप यहां पे रीनेम लिखोगे। मैं सोच रहा हूं ऐसा कैसे हो सकता है। ओके, एंड नाउ लुक एट दिस। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, देन यू विल बी फाइंड आउट कि ये पुराना वाला डेटा फ्रेम में यहाँ पे इंग्लिश था, और इंग्लिश को हम लोगों ने रिप्लेस कर लिया किससे, साइंस से। आई होप यू अंडरस्टैंड कि हाउ वी कैन रीनेम रो लेबल एंड कॉलम लेबल। इफ यू वांट टू रीनेम, देन हम लोग किसका यूज करेंगे, रीनेम फंक्शन का। अगर हमको रिमूव करना है तो ड्रॉप फंक्शन का यूज करेंगे। अगर हमको अपग्रेड करना है तो अपग्रेड हमको इंसर्ट करना है या फिर डिलीट करना है, तो हम लोगों ने इसके लिए ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। तो टुडे वी हैव डिस्कस यू टोटल 4 ऑपरेशंस इन अ डेटा फ्रेम। तो 4 ऑपरेशन व्हाट इज, ये आपका टोटल 4 ऑपरेशन है जो हम लोगों ने आज आपसे डिस्कस कर चुका है। एक बार इसको हम लोग रिविजन कर लेते हैं जल्दी से फटाफट। एडिंग द न्यू कॉलम, अगर न्यू कॉलम ऐड करना है तो डेटा फ्रेम का नेम के बाद देन आफ्टर यू राइट डाउन व्हाट। अगर सपोज करो कोई भी न्यू कॉलम ऐड करना है तो डेटा फ्रेम का नेम इन ए स्क्वायर ब्रैकेट यू राइट डाउन द कॉलम नेम, देन आफ्टर दैट यू राइट डाउन व्हाट, जो भी आपको रिकॉर्ड इसमें इंसर्ट करना है। सेम हमको अगर रो का लिखना है तो डेटा फ्रेम का नेम .loc। अगर हमको रो इंसर्ट करना है तो .loc फंक्शन का यूज करेंगे। अदरवाइज हम लोग कुछ भी फंक्शन यूज नहीं किए तो बाय डिफॉल्ट उसमें क्या इंसर्ट हो जाएगा, वो कॉलम एज ए कॉलम इंसर्ट होगा। df डॉट, अगर डेटा फ्रेम का नेम और स्क्वायर ब्रैकेट में अगर हम लोग कुछ भी मेंशन कर रहे हैं और यहाँ पे रिकॉर्ड मेंशन कर रहे हैं, तो ये आपका क्या इंसर्ट होगा, कॉलम। इफ यू वांट टू इंसर्ट द रो, तो कैसे इंसर्ट करेंगे, df डॉट loc, देन आफ्टर दैट हियर यू राइट डाउन द रो का नेम, जो भी आपको रो इंसर्ट करना है, देन यू इंसर्ट द रिकॉर्ड। और अगर सपोज करो न्यू रो हो गया, डिलीट करना है किसी भी रो को और कॉलम को, देन हाउ वी कैन डिलीट, तो आप क्या लिखोगे, df डॉट ड्रॉप। ड्रॉप लिखने के बाद आप क्या लिखोगे, कॉलम का नेम, कॉलम का नेम मेंशन करेंगे, देन आफ्टर ये सेमी कॉलम हो जाएगा। आप यहां एक वैल्यू पास करोगे एक्सिस, कॉलम है तो 1 और अगर रो है तो एक्सिस क्या पास हो जाएगा, 0। इन दिस वे वी कैन रिमूव डिलीट द रो एंड कॉलम फ्रॉम द डेटा फ्रेम। और अगर रीनेम करना है तो रीनेम के लिए हम लोग क्या करेंगे, df डॉट रीनेम। रीनेम करने के बाद जैसे ही रीनेम करेंगे तो हम लोग के पास फिर आप यहां पे लिखोगे, अगर रो को रीनेम करना है तो रो लिखो, जो भी आपको रो को रीनेम करना है। ये आपका पैरेंथेसिस रहेगा और ये आपका कर्ली ब्रैकेट रहेगा। ठीक, आप यहाँ पे न्यू रो का नेम डाल दो, जो भी आपको रिप्लेस करना है जिससे, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, कॉलन, और एक्सिस आप पास करोगे क्या, अगर ये रो है तो इंडेक्स लिखेंगे सिंगल कोटेशन में, डबल कोटेशन में, और ये ब्रैकेट आपका क्लोज हो जाएगा। और अगर सपोज करो कॉलम को रीनेम करना है तो आप कॉलम का नेम डालोगे जो पुराना वाला है, देन आफ्टर दैट आप न्यू कॉलम का नेम डालोगे जिससे आपको रिप्लेस करना है, ये क्लोज, और ये आप एक्सिस यहाँ पे पास करोगे क्या, कॉलम नेम, तो भी आपको देना है, और ये आपका फाइनली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो इन दिस वे वी कैन रीनेम द रो लेबल एंड कॉलम लेबल। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू टू वॉच दिस वीडियो, एंड आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और डेटा फ्रेम से रिलेटेड और सीरीज से रिलेटेड जो भी वीडियो है
आप उसको यूट्यूब चैनल से प्ले स्टोर से जाकर उसको एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि इस वीडियो इस टॉपिक से रिलेटेड, इस आईपी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन हो आपको जल्दी पहले मिल जाए।